Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to learn the new concept that is a cross-cultural skills. So what is a cross-cultural skill? In that we are going to learn about the culture. Culture means it is a group which shapes a person's values and identity. So culture is formed race, ethnicity, gender, class and religion, country of origin and geographic region. These things are comes under the culture. So what is the exactly cross-cultural communication? Cross-cultural communication is a field of study that looks at how people from differing cultural background communicate in similar and different ways among themselves and how they endeavor to communicate across culture. For example, इंडिया में XYZ कंपनी में कोई एक पर्सन है एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है और उसकी प्रमोशन हुई है और उसे उसके हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या किया जा रहा है, सीईओ लेवल के लिए प्रमोट किया जा रहा है. सो बट ऑब्वियस जब वो इंडिया से यूएसए जाएगा सो द कल्चर ऑफ द इंडिया इज अ डिफरेंट एंड culture of the USA is a different. So in short that is known as a cross cultural communication जहां पे पीपल्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनके जो परसेप्शंस होते हैं, व्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. सो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस में क्या आता है? फर्स्ट एज, देन कस्टम्स, वैल्यूज, जेंडर, country and ethnicity. This is a sub parts which comes under the cross culture. Why cross culture is important? Because in the companies due to the growth of the global business, technology and the internet, हमें क्या करना है? एट अ टाइम डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीपल्स के साथ क्या करना है? कम्युनिकेट करना है. सो वो सिचुएशन में हमें अदर कंट्रीज के भी कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, अदर स्टेट्स के पर्सन्स के बिहेवियर्स को, थिंकिंग को हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर स्पीक्स, कम्युनिकेट एंड परसीव्स द वर्ल्ड अराउंड देम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो इट्स अ नॉर्मल हिंदी, बट सेम टाइम्स पे अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन हिंदी बोलेगा तो उसका एक्सेंट में क्या होता है? चेंज होता है. दैट इज अ डिफरेंट कल्चर स्पीक्स. Even in the Maharashtra also there is a different kinds of the Marathi languages like खानदेशी, कोंकणी. औरंगाबाद की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, नासिक साइड्स की जो है वो डिफरेंट है. दैट इज नोन एज अ कल्चर स्पीक्स. Then language differences comes under the cross culture skills. High context versus low context culture is there. Non-verbal differences is there and power distance are major factors affect cross cultural communication. Now what is a high versus low context culture? High context culture that rely heavily on non-verbal and subtle situational cues in communication. It means यहाँ पे non-verbal communications को ज़्यादा importance दिया जाता है and with the help of the non-verbal communication यहाँ पे two persons क्या करेंगे? coordinate करेंगे. और ये हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर कहाँ पे यूज होता है? स्पेशली इन विच कंट्री? दैट इज अ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप. एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर मीन्स कल्चर्स दैट रिले हेविली ऑन वर्ड्स. मीन्स यहाँ पे आप जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? वर्ड्स का यूज करेंगे एंड दैट वर्ड्स कन्वे मीनिंग इन कम्युनिकेशन. और वो क्या करेगा? वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो कम्युनिकेशंस के मीनिंग को क्या करता है? रेफर्स करता है. तो उसके थ्रू आप अंडरस्टूड कर पाओगे कि वो पर्सन एग्जैक्टली आपके साथ क्या बोलना चाह रहा है. सो इन द मिडल ईस्ट इसे क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ
Here is some examples related to the cross culture. The first come in this eye contact. Some cultures looking people in the eyes is honesty and straightforwardness, and in others it is seen as a challenging and rude. So culture to culture, country wise eye contacts भी क्या होते हैं, different होते हैं. If in the US, if you have a good eye contact with a person, it generally signifies that you are interested in the person. Same in Middle East, eye contact is much less common and considered less appropriate. In many Asian, African and Latin African cultures, extended eye contact can be taken as an affront or challenge of authority. And in Western Europe, it is considered proper and polite to maintain almost constant eye contact with another person. So same time पे eye contact country wise भी क्या है, उसके different messages को represent करता है. Then next come in this, that is a gesture. So a movement of part of the body, especially a hand or the head, to express an idea or meaning. फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ टाइम ऐसे होता है कि हमें वर्ड्स में नहीं बोलना है और अगर उस चीज के लिए हम एग्री है, सो वी आर सेइंग लाइक दिस. और अगर हम एग्री नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने हेड को इस तरीके से मूव करते हैं. सेम लाइक दैट, आपको अगर ये बताना है कि ये थिंग्स बहुत वंडरफुल है, ठीक है, या ये ओके है, सो हम क्या करते हैं, थंब यूज करते हैं, ओके. सेम टाइम्स पे अगर वो वंडरफुल है, सो वी आर सेइंग लाइक इट्स अ वंडरफुल. बट वही चीज क्या है, लिटिल बिट ओके ओके है या हमें पसंद नहीं आ रही, सो वी आर सेइंग लाइक दिस वे, मीन्स हमें वो चीज पसंद नहीं आई. दैट इज अ सिंबल ऑफ द डिसलाइक, दैट इज नोन एज अ जेस्चर, जहां पे विद द हेल्प ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज और को एक्सप्रेस करते हैं. सेम in the Egypt, using of this kinds of the finger, it means be patient. से यहाँ पे अगर हमें इंडिया में बोलना है पेशेंस के लिए, भी पेशेंट, सो वी आर लाइक बी पेशेंट. इटली में व्हाट डू यू मीन, से इंडिया में हमें बोलना है तो हम ऐसे पूछते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, बट इन द इटली इट शुड बी लाइक व्हाट डू यू मीन. एंड इन द ग्रीस दैट इज जस्ट परफेक्ट, मीन्स सेम जेस्चर बट उसके मैसेजेस क्या है, डिफरेंट है, उसका कम्युनिकेशन वे क्या है, डिफरेंट है. नाउ टच, टच ऑल्सो कम्स under the examples of the cross culture. In the Islam and Hinduism, touching with left hand is insulting of the people. Now, what is the cultural conflicts in workplace? It arises because of the difference in the value and norms of behaviors from different cultures. So, these situations create misunderstanding and lead to conflict. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही ज्यादा लाउडली बात करता होगा, माइट भी उसके कल्चर में होगा, बट सेम टाइम्स सम पर्सन स्पीक्स वेरी पोलाइटली, वेरी स्लोली. वो क्या है, उसका कल्चर है, वो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है. सो वर्क प्लेस पे भी क्या होते हैं, क्रॉस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं. क्यों? बिकॉज अगर कोई पर्सन डिफरेंट कल्चर से आ रहा है तो वो अपने कल्चर्स को क्या करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और सेम टाइम पे उसे अदर्स कल्चर्स के लिए क्या नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी. जिसकी वजह से मेनी ऑफ टाइम क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं. There are the different situation where cross-cultural conflicts are created. The first one, misunderstanding or conflict between different nationalities, religious or ethnic groups. Then cultural ignorance and insensitivity. अगर वर्क प्लेस पे हम सिर्फ एक कल्चर को एम्फासिस कर रहे हैं in spite of the others, so same time also there cross-cultural conflict is created. Then lack of awareness of social lifestyle practices. यहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ प्रैक्टिसेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं. पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. देन मिसकम्युनिकेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन. हमें कुछ और बोलना है बट
सामने वाला उसे कुछ और तरीके से समझ रहा है, सो वहां पे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट्स होगा और इसके वजह से वहां पे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये सिचुएशंस में हमें क्या करना है, प्रॉपर वे में बाय यूजिंग द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव अ नीड टू कम्युनिकेट विद द अदर्स एंड परसेप्शन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट। मैनी ऑफ टाइम इट हैपेंस कि अगर कोई पर्सन यहाँ से दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए जाता है, सो वो वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाता है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल्स, देयर फूड हैबिट्स, देन देयर लाइक कम्युनिकेशंस वे। ठीक है, अगर हम लोग स्टेट वाइज भी बात करें तो स्टेट वाइज भी क्या होता है, पर्सन्स के कम्युनिकेशंस डिफरेंट होते हैं। कहीं पे बहुत लहजे के साथ, बहुत रिस्पेक्ट्स के साथ कहीं पे बात की जाती है और कहीं पे अगर हम लोग रेतु करके बात कर रहे हैं तो समवेयर ये भी क्या करता है, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देन 6 fundamental patterns of the cultural differences. First, different communication styles, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों इंग्लिश में भी क्या है, डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेंट। देन डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सी समटाइम्स लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को पॉजिटिव वे में लेते हैं एंड समटाइम्स पीपल्स टुक दैट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नेगेटिव वे। सो ऑन दिस बेसिस रिप्रेजेंट करता है कि आप आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रखते हो, आप किस तरीके से उसे आपका परसेप्शंस देते हो। देन डिफरेंट अप्रोचेस इन कंप्लीटिंग टास्क। समवन इज बिलीव्स इन टास्क प्रायर या प्रायर टाइम खत्म, टाइम के प्रायर हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कुछ लोग ऑन टाइम का वेट करते हैं एंड कुछ लोग आफ्टर टाइम उसे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो इसकी वजह से भी मेनी ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। Then different decision making styles. As a manager have a leadership style. So as per the situations वो क्या करेगा, उसे अपने डिसीजंस को लेगा। कुछ लोग प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेते हैं, few people takes a very slow decision, few people thinks about past, present and future, वो बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरीके से सबका डिसीजंस लेने का स्टाइल भी क्या है, डिफरेंट है। देन डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स डिस्क्लोजर। हमें कोई चीजों को अगर डिस्क्लोज करना है तो उस टाइम आप पॉजिटिव एटीट्यूड यूज कर रहे हो या नेगेटिव एटीट्यूड यूज कर रहे हो, ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। एंड द लास्ट वन कम इन दिस, दैट इज डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ नोइंग। मीन्स एक ही चीज को लर्न करने के लिए आप कौन से डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हो, आप किस तरीके से उस पर वर्क करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द क्रॉस cultural skill. So in today's time, because of the globalization, because of the dynamic environment, it is a necessary to every person as well as manager in the organization to adopt the cross cultural communication. It means time to time they have to be upgrade with the changes in the environment, changes in the technology, and then only they can survive in the organizations for a long period of time. Thank you.